ट्रिपल बॉन्ड का एक रूल डाला है, उसमें कैसे है, अगर डबल और ट्रिपल दोनों होता है तो डबल बॉन्ड का सफिक्स ene लिखता है और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स yne, ene एंड yne। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो en yne हो जाता है, anion हो जाता है। So double bond and triple bond, if both are present simultaneously, and the suffix is called as ni, suffix is called as ni। तो इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, थोड़ा और आगे आगे बढ़ेंगे तो चलते जाएंगे। तो 8 मिनट और बाकी है, तो 8 मिनट लेक्चर चालू होने से पहले जितने बच्चे प्रेजेंट है उनको कुछ डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल लेक्चर आई कैन हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपको बोलो प्राची, बोलो। प्राची क्या हुआ? ओके, जब तक स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ टू गो फॉर यस। सो विल सी सम कंपाउंड्स, some structures. So please everybody start writing in your notebook. Have the pen in your notebook, so start doing. You have to write the IUPAC and also the bond line आपको करना है। आपको IUPAC करना है और साथ में बॉन्ड लाइन, ठीक है। Okay, so we'll start with the first structure. Everybody try to solve the first structure. First, I'll help you out how to observe the functional group here is ketone
and it is there is alcohol. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में फंक्शनल क्या है, कीटोन है और अल्कोहल है. तो कीटोन 11:30 को क्लास स्टार्ट हो रहा है, अभी और 2-3 मिनट है. नहीं, मैं उनको रिवीजन करवाता हूँ जो बच्चे अभी तक आ रहे हैं. ओके ओके सर, चलिए. तो हाँ, तो उनको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा. ओके. ठीक है ना. तो सर बोलते हैं उस हिसाब से 10 मिनट रुक जाते रहे. तब तक आप लोग सब अपने अपने नोटबुक्स में स्ट्रक्चर कॉपी आउट कर दो. You all copy the structure and also try to write the IUPAC nomenclature. So we'll 3 minutes wait. सर अब बोलो ना. सर वो 6th वाले में आपने लास्ट में CN लिखा है कि CH है वो? N for naughty. ओके सर. Okay, so it's a very good morning to everybody. It's 11:30, so lecture time started, and I hope everybody is well enough. Yesterday night there was a high rainfall in Palghar. Good rainfall was there. So welcome rainy warming to everybody, each and everybody. So I hope everybody's health is good. Take care of your health, and also start studying daily, revise daily. So we are doing today again with the IUPAC nomenclature. थोड़ा सा पहले एलिफेटिक चेन के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग एलिसाइक्लिक एंड देन एरोमेटिक पर जाएंगे. तो धीरे धीरे विल मूव योर्स. Many students are joining day to day, no problem, but see there are two solutions I can do for you. The students who have entered new in the lectures, उनके लिए दो हो सकता है. एक तो उनका मैं शाम को रिवीजन लेक्चर ले सकता हूँ. I can take a revision lecture in the evening, that is from 5:30 to 6:30 I can take. Or second option is that I can make videos and send it to you. And third option, just as my Chirag sir suggested, the third option is that before starting the lecture daily, half an hour before I can start with you. So मतलब अगर 11:30 का लेक्चर है तो मैं 11 बजे आकर 11 से 11:30 आपको वो वापस करा सकता हूँ. तो जैसा आपको अच्छा लगे बेटर है. आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट बिकॉज यू शुड लर्न दिस टॉपिक्स वेरी वेल. ये टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपको आगे जाके डाउट्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. सो यू ऑल सेट अप योर माइंड एंड यू ऑल गिव द सेशन टू चिराग सर और कासत सर, वॉट एवर यू फील लाइक, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क आउट. बट जस्ट डोंट लीव द होप कि नहीं यार सर ने पढ़ाया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है. ऐसा नहीं. See, I know you all are newcomers, you all are learners,
there are many topics which you will not understand at one time. एक बार में नहीं समझ में आएगा. So that's why you require revision lecture. I know that, and we are ready to help you out. We will give you revision lectures. For that purpose, what you have to do here is you have to cooperate with us. You have to write down your doubts कि क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं है. Talk to the respective branch owners, and they can talk to us, and we can clear your doubts very well. So there are three options that we can do. That I can take half-hour lecture earlier, or okay. So let's start with the first compound. So in this compound, there are two functional groups, that is ketone and alcohol. That is ketone and alcohol. And as we have studied, the order of priority, ketone is having more priority as compared to alcohol. Ketone के पास ज्यादा priority है. ज्यादा priority है तो उसका हम use करेंगे suffix. तो क्या hint क्या अपना बनता है कि C double bond O is having more priority as compared to alcohol. C double bond O is having more priority as compared to alcohol. तो इसलिए इसका हम लोग यूज करेंगे suffix और इसका हम यूज करेंगे prefix. Correct? So now this ketone group from either side. This is on first, second, third. First, second, third. कहीं से भी काउंट करो थर्ड कार्बन पर ही है. तो दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि कहां से करेंगे. फिर अगर यहां से नंबरिंग करते हैं हम लोग तो I'll get number what? 1, 2, 3, 4, 5. I get numbering 3 and 4. But if I start numbering from this side, 1, 2, 3, 4, 5, I get numbering 2 and 3. So the rule says that you should go for the lowest locant rule, lowest position. So 2 and 3 is lowest position. So on 2 alcohol, और अल्कोहल का यूज करना है अपने को प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स का क्या है अल्कोहल का? हाइड्रोक्सी, and it is present on second carbon atom. So name becomes 2-hydroxy. On second carbon atom, OH group is present, so 2-hydroxy. There are 5 carbon atoms. 5 means what? Pentane. 5 means what? Pentane. And we are having a functional group of ketone. So suffix of ketone. So E is to be replaced by the suffix with respective position. So 3-ONE. 2-hydroxy, pentane, 3-one. This becomes your correct IUPAC nomenclature. Now we go for the bond line. How to draw the bond line? There are 5 carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, 5. On second carbon atom, we are having what? OH group. And on third carbon atom, double bond O. On third carbon atom, double bond O. This becomes your bond line. Second chain, you are having carboxylic acids and amine. Carboxylic acid and amine. So carboxylic acid is having the highest priority. Amine is having lower priority. Therefore, you have to use suffix of carboxylic acids and prefix of amine. तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर 1, 2, 3, 4. तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसको आ जाएगा यहाँ पर अमीनो. सो ऑन थर्ड कार्बन एटम इट बिकम्स 3 अमीनो. फिर 4 कार्बन एटम्स ब्यूटेन, OIC एसिड. क्यों OIC एसिड आया? क्योंकि इसका सफिक्स OIC एसिड है, तो इसलिए क्या आएगा? 3 amino butanoic acid. There is no gap between amino and butanoic. It should look like a one word. So it becomes 3 amino butanoic acid. Bond line 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. यहाँ पर COOH group. First, second, third. On third carbon atom NH2. Third carbon atom NH2. Okay, this chain also can be written in one more way. Let us see what is that way. 1, 2, 3, 4. बराबर है. फिर यहाँ पर COOH है ना, तो COOH को कैसे लिख सकते हैं?
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन, थर्ड पे NH2। ये देखो ये कैसा है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये वैलेंसी दिखाया है क्लियरली और कुछ। सो दिस वे यू कैन आल्सो राइट। सो आइदर ऑफ द वे, दोनों में से कोई भी एक मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं। Now look at the structure. So functional group 1, 2, 3. 3 carbon atoms. So propane. Alcohol is present. So OL. But alcohol 2 बार है, 2 बार है, इसलिए E को रिप्लेस नहीं करेंगे। अल्कोहल 2 बार है, इसलिए E को रिप्लेस नहीं करेंगे और ये हो जाएगा आपका डायोल। कौन से कार्बन पर है? 1 और 2 पर। सो नहीं समझा। हाँ, वापस बताते हैं। देखो ये अगर ऐसे होता तो हम क्या लिखते थे? प्रोपेन और अल्कोहल का सफिक्स OL और हम लिखते थे प्रोपेन 1OL, प्रोपेनॉल। E would have been replaced by OL, but now the OH group is 2 times. So when any same functional group is repeated 2 or more times, then E is not replaced. अगर functional group 2 या ज्यादा बार repeated है तो E को replace नहीं करेंगे, तो suffix OL। but अल्कोहल कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए डायोल। suffix 2 बार है, इसलिए डायोल। कौन से कारण पर है? फर्स्ट और सेकेंड पर है, इसलिए 1, 2 डायोल। क्लियर एवरीबॉडी दिस मच? किसको डाउट है प्लीज आस्क। ठीक है, अभी इसका बॉन्ड लाइन 1, 2, 3, सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल, फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल, तो हम यहाँ पर OH नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? इस चेन को एक्सटेंड करके OH लगाना। क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप डज नॉट हैज कार्बन। कार्बन होता तो एक्सटेंड नहीं करना पड़ता था, कार्बन नहीं है इसलिए एक्सटेंड करना पड़ता, तो इसलिए ये नंबरिंग कैसे आएगा? 1, 2, 3। Now go for the fourth structure. Look at the fourth structure. In fourth structure, aldehyde and carboxylic acids are present. Carboxylic acids and aldehyde both are present. The more priority goes to carboxylic acids. That's why number 1, 2, 3, 4. So aldehyde का हमको क्या यूज करना है? प्रीफिक्स यूज करना है। Do you all know what is the prefix of aldehyde? What is the prefix of aldehyde? You all remember, students? ऑक्सो। नहीं, वो कीटोन का है। Formyl, correct. Formyl is the prefix of aldehyde. So what will the name here is now? Come on, what will be the name? Can you give the IUPAC name of the compound? 4-oxo. 4-formyl. ऑक्सो नाही, फॉर्माइल सांगितलं ना? हाँ बोल बेटा। Come on, speak. 4-formyl butanoic acid. 4-formyl butanoic acid. Very good. Correct answer है 4-formyl butanoic acid. Very good. 4-formyl butanoic acid. Now bond line 1, 2, 3, 4. यहाँ पर COOH group और यहाँ पर CHO. COOH group and CHO. Okay. Now go for the fifth structure. Fifth structure में there are polyfunctional group. बहुत सारे functional group एक साथ है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो इसलिए उसको नंबर 1 देंगे हम लोग। ये 1, ये 2, ये 3। अब क्वेश्चन ऐसा होता है 4 कहां पर जाना है, तो हम 4 कहां पर जाएंगे? इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? यू कैन गो एनीवेयर, क्योंकि दोनों में एक ही कार्बन एटम है, तो हम यहां पर लिख देंगे। हाँ, यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना? तो इसका नाम कैसे आ जाएगा यहाँ पर?
3 मिथाइल 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो। अभी ऐसे देखो नाम कैसे कैसे लिखा है मैंने, तीनों अलग अलग बताया है क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्वेश्चन होता है कि सबसे आगे किसका नाम लिखेंगे, कम सबसे आगे किसका नाम लिखेंगे, हु विल स्पीक। 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, मिथाइल है, फॉर्माइल है और ऑक्सो है। फॉर्माइल फॉर्माइल लिखेंगे, करेक्ट आंसर। So 4 formyl, then 3 methyl 2 ऑक्सो 3 methyl 2 oxo in alphabetical order. butanoic acid. 4 formyl 3 methyl 2 oxo butanoic acids. This is not the correct order. This is not a correct order. Why? The correct answer will be 4 formyl 2 oxo 3 methyl butanoic acid. Come on, who will speak the reason? The reason is that कि ये पहले आपने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वेरी करेक्ट आंसर, बट अभी यहां पर क्या था, ये फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स है और ये अल्काइल ग्रुप का प्रीफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द प्रीफिक्सेस ऑफ द alkyl group. Therefore, oxo is written before methyl. So this answer is not the correct one. Getting understood? So this is the correct answer. Now we'll go for the branching. This one. क्या बोलेंगे इसको? Bond line. 1, 2, 3, 4. On third carbon atom, we are having methyl group. Second carbon atom, ketone. One minute, I'll draw again. यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4. On second carbon atom ketone, first carbon atom carboxylic acids, third carbon atom methyl और यहाँ पर क्या है aldehyde. तो क्या आंसर इसमें? 1, 2, 3, 4 aldehyde, methyl and ketone. Check your answers everybody. Now here, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, अमाइंस एंड अल्कोहल. साइनाइड, अमाइन एंड अल्कोहल. तो मोर प्रायोरिटी गोज फॉर साइनाइड. नाइट्राइल 1, 2, 3, 4. Now question is हमें आगे जाना है या नीचे जाना है? We have to go straight or we have to go downwards. The answer to this question is we have to go डाउनवर्ड्स because number of carbon atoms there are more. So here it will be 5 and 6. Here it will be 5 and 6. Why 5 and 6? Because 2 carbon atoms are present at the same time. 2 carbon atom एक साथ present है, इसलिए 5, 6. अभी क्या रह गया? 2 पर OH ग्रुप, 3 पर ये और CH3. तो इन सब का प्रीफिक्स इस करेंगे. इसका प्रीफिक्स अमीनो, इसका हाइड्रोक्सी. तो अमीनो पहले लिखेंगे ना, तो 3 पर क्या आएगा? अमीनो. 3 अमीनो, 2 हाइड्रोक्सी, देन 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल, बराबर है. एंड हाउ मेनी कार्बन आते हैं इन द स्ट्रेट? 6. 6 मतलब क्या आएगा? हेक्सेन सफिक्स नाइट्राइल. सो नेम बिकम्स हेक्सेन नाइट्राइल. 3 अमीनो, 2 हाइड्रोक्सी. सर मिथाइल नहीं, इथाइल. नहीं, इथाइल तो ब्रांच मेन में आ गया ना. इथाइल देखो 4, 5, 6 ये मेन चेन में आ गया. ये सर्कल किया है, देखो ये सर्कल किया है, वो आपका ब्रांचिंग है, उसको नंबर नहीं मिला है. ओके सर.
समझ में आया? ठीक है ना? तो इसलिए मिथाइल आएगा, 4 पर मिथाइल रह गया, 4 पर मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम? ये देखो, ये मेन चेन में आ गया, ये ब्रांचिंग नहीं है, मेन चेन है। मेन चेन में 6 कार्बन एटम, तो हेक्सेन। इस नाइट्राइल का सफिक्स NiTri, नाइट्राइल। दिस इज योर ना बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे? कितने कार्बन एटम्स है? 6 कार्बन एटम्स। सो 1 2 3 4 5 6। अगेन वी काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 है। फर्स्ट कार्बन पे Cn, सेकेंड कार्बन पे OH, सेकेंड पे OH, थर्ड पे NH2 और फोर्थ पर मिथाइल। देखो 3 पे अमीनो, 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल, 5 6 ऐसे का ऐसे हो गया आपका आंसर। क्लियर एवरीबॉडी नाउ? अंडरस्टूड? सो यू ऑल विल नोट डाउन दिस? हाँ, यस, anybody has any doubt, please ask. Because I'm going to start with cyclic structures now. Okay, so I hope everybody is doing very well. So we'll go with the cyclic structures. Okay, so actually this is CH3, CH2, CH3, and this is called as propane. प्रोपेन। अभी इसको क्या किया है? आई हैव बेंट इट, इसको बेंट कर दिया गया है, तो ये रिंग फॉर्म में हो गया है। तो प्रोपेन को रिंग फॉर्म में लाया है, इसलिए इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा? साइक्लो। एंड 3 कार्बन एटम है, इसलिए प्रोपेन। दिस इज साइक्लिक रिंग ना, पूरा रिंग बन गया है, therefore prefix of it cyclo, and because of 3 carbon atoms propane. Here there are 4 carbon atoms, so butane, but it is in the ring form, therefore prefix uses cyclo. Total 4 carbon atoms, so butane, cyclopropane, cyclobutane. अगर इनका बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसे आ जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन ऐसे आ जाएगा। तो ज्योमेट्री में हम इसे ट्रायंगल बोलते हैं, पर केमिस्ट्री में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। So I'll draw some structure, you have to write the name, come on. Come on. Harsh, name the compound. Done. You can speak the answer. Cyclopentane. Cyclopentane, Cyclohexane. cyclohexane. Cyclooctane. तो क्लियर एवरीबॉडी? मतलब समझ में आ रहा है? अभी इसमें थोड़ा सा
अभी इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं आगे चेन्स। चलो एकदम से समझ में नहीं आएगा। So this is the chain. Now how to name this? So यहाँ पर दो ग्रुप है ना, एक मिथाइल है एक इथाइल है, one methyl and one ethyl. So rule says that दोनों अगर साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन में कहीं पर भी नंबर 1 डाल सकते हैं, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? पहले इथाइल आ रहा है, इसलिए इसका नाम को फर्स्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। So you'll get here is 1 ethyl, 2 methyl, 1 ethyl, 2 methyl cyclohexane. I'll draw the same chain, but थोड़ा सा modify और करेंगे। Now look at the structure. This is bend line. Bend line का मतलब होता है इथाइल, क्योंकि CH2 and then CH3. यहां पर दो लाइन है, मतलब एक मिथाइल और 2 मिथाइल। तो अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो ये 2, ये 3, ये भी 3 ना, दोनों 3। तो ब्रांचिंग कहां पर आता है? 1 3 3 पर, 1 3 और 3 पर। आई चेंज द नंबरिंग स्टाइल, 1 1 2 3। तो मेरा नंबरिंग कौन सा आएगा? 1 1 3। सो व्हिच शुड आई एक्सेप्ट, 1 1 3 और 1 3 3? 1 1 3। 1 1 3। 1 1 3। हाँ, तो सामने दिखाई दे रहा है लोएस्ट लोकेंट रूल हमको यूज करना है, लोएस्ट सम रूल। सो बट इथाइल ई पहले आएगा, सो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो इसलिए डाइमिथाइल। 6 कार्बन एटम्स है रिंग में, 4 5 6, सो इट बिकम्स साइक्लोहेक्सेन। Cyclohexane. Note down this. If I go for this type of chains, then there are 4 carbon atoms and the ring form so cyclobute। 4 carbon atoms है इसलिए ब्यूट, और ring है इसलिए cyclo, तो cyclobute। But due to presence of double bond, the alkane becomes alkene, becomes so it will become butene, so it is cyclobutene। and नीचे वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा साइक्लोपेंटेन, ENE। So your A is replaced by E, मैंने क्या बोला? A is replaced by E, मतलब ओरिजिनल स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? पेंटेन, but your A is replaced by E because of double bond। So now pay attention again. If you are having 2 double bonds at a time, तो A को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? साइक्लोपेन। इतना तो क्लियर? साइक्लो है तो रिंग फॉर्म में है, पेन बिकॉज 5 कार्बन एटम्स आते हैं, बट अभी A को रिप्लेस नहीं करना है, तो A एज इट इज, तो इट्स साइक्लोपेंटा। Now double bond is on which carbon atom? 1 2 3 4 5। So first पर है और थर्ड पर है, तो नंबरिंग कौन सा लेना है? जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है ना, 1 और 2 के बीच में, बट स्टार्ट 1 से हो रहा है। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, बट स्टार्ट 3 से हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग होता है वो नंबर हमें लेना है, इसलिए 1 3।
2 टाइम्स डबल बॉन्ड है, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, एंड डबल बॉन्ड का सफिक्स en, so it becomes pentadiene. एक बार वापस, again once, cyclo because it is a ring form, pent because there are 5 carbon atoms. Okay, now if there was only one double bond, we used to replace A by E, but as the double bond is repeated 2 times, A should not be replaced, A should not be replaced और in अलग से आएगा. पर in कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए डाई. कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट और थर्ड पर है, तो 1 और 3, इसलिए नाम हो जाता है साइक्लोपेंटाडाइन. साइक्लोपेंटाडाइन ने. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी फॉर now look at the chain. This is aliphatic, this is alicyclic. Aliphatic, alicyclic. Now you have to count the number of carbon atoms in both the chains. In both the chains. तो यहाँ पर 1 2 3, ओपन चेन में कितने कार्बन एटम है? 3, और साइक्लिक चेन में 4 कार्बन एटम है. Cyclic is having 4 carbon atoms and ring is having 3 carbon atoms. So more priority will be given to the carbon atom having more number of carbon atoms. तो जिस चेन में ज्यादा कार्बन एटम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये यहाँ पर 1 2 3 4 ये मेन चेन, एंड दिस बिकम्स योर सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन एटम है? 3, तो 3 को हम बोल देंगे प्रोपाइल. सो नेम बिकम्स व्हाट? प्रोपाइल. फर्स्ट कार्बन पे 1 प्रोपाइल cyclobutane, 1 propyl cyclobutane. In this structure there are 4 carbon atoms in the straight chain and 3 carbon atom in the ring chain. Ring chain में 3 है और straight chain में 4 carbon atom है. तो अब ऐसे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? In such type of structure the more priority will be given to the open chain. So 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this is your, actually इसका नाम क्या बोला था अपन ने? साइक्लोप्रोपेन. बट अभी ये सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में आ गया ना, इसकी प्रायोरिटी कम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल. इसकी प्रायोरिटी कम हो गई है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन की जगह पे क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल. सेकेंड कार्बन एटम में और मेन चेन में ब्यूटेन. देखो, once again I'll repeat this. What is there? One is aliphatic chain and one is cyclic chain. One is aliphatic and one is cyclic. So when you're having aliphatic and cyclic chain, then you have to check which has more number of carbon atoms. If aliphatic chain has more number of carbon atoms, तो वो आपका मेन चेन हो जाएगा और रिंग वाला सब्स्टिट्यूएंट. और अगर उल्टा हो गया, अल्काइल ग्रुप का कम कार्बन एटम लेस है और रिंग में ज्यादा है, तो रिंग वाला आपका मेन चेन हो जाएगा. So you have to select the longest continuous carbon chain on the number of carbon atom present in each structures. I hope everybody has understood this part. बॉन्ड लाइन. बॉन्ड लाइन दाखवतो. 1 2 3, बराबर? 1 2 3. और यहाँ पर क्या है? इस ये साइक्लोहेक्सेन है ना, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, साइक्लोब्यूटेन. और फिर यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 साइक्लो. यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4. और सेकेंड कार्बन पे क्या है? प्रोपाइल. सो साइक्लोप्रोपाइल
and that becomes your, so that becomes your bond line. I'll give you one more structures, try to identify. सर ऊपर वाले में सेकंड पे वो ट्रायंगल आएगा ना हाँ तो बॉन्ड देखो लाइन ना, में? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सर उसके बाजू में आपने 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट लिया है। हाँ तो ऐसा लो एक ही बात है ना, ऐसा लो एक ही बात है। हमको क्या रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ से भी सेकंड पर है और द सेम स्ट्रक्चर आते हैं। ओके सर। यहाँ पर भी देखो ना मैंने क्या किया है, इधर मैंने लास्ट में ब्यूटेन लिखा है, इधर फर्स्ट में लिखा है। आपको चेन विथ शुड बी एग्जैक्टली सेम। अभी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, ये मेन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट इधर है 1 2 3 4 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आ रहा है, 1 2 4 4 पर। ठीक है, अगर इसको मैं अलग स्टाइल से नंबरिंग करते हैं, इसको 1 देते हैं, 1 1 2 3 4, तो क्या आएगा 1 1 3 4 3 4 5 6 तो बड़ा होगा। अभी दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 1 1 3 4 बराबर है, 1 1 3 4। अभी 3 और 4 पर किस चीज का ब्रांचिंग है, 3 और 4 पे कौन सा चीज का ब्रांचिंग है, इथाइल। इथाइल, बराबर है, समझ में आया सबको। पेंटल एग है, पेंटल एग है, सो इट इज इथाइल। इथाइल 2 टाइम्स है, इथाइल 2 टाइम्स है, तो कैसे लिखेंगे 3 4 डाइथाइल, डाइथाइल, 3 4 डाइथाइल। और फर्स्ट कार्बन पे 2 बार मिथाइल है, फर्स्ट कार्बन पे 2 बार मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। एंड मेन चेन में 6 कार्बन टर्म है, इसलिए सफिक्स मेन चेन आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 3 4 डाइथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर everybody? So we should move. सो हाँ एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ कर देते हैं। ठीक आहे, तर या स्ट्रक्चरला आपण परत ड्रॉ करूया इकडे व्यवस्थित. The structure is there. Here, this and this. So this is your ring chain और इसमें कितनी कार्बन टर्म है, 6 कार्बन टर्म है. ये ओपन चेन है, बट इन ओपन चेन में कितने कितने कार्बन टर्म है, यहाँ पर 1 2 1 2 और इसमें एक ही कार्बन टर्म. तो हम उनको मेन चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, so main chain will be this one only. So now second arises numbering. So if I start numbering from here, I get 1 2 3 4 4. So 1 2 4 and 4. If I start numbering from here, so यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 और 2, तो 1 1 2 3 4 3 and 4. तो 2 स्टाइल से नंबरिंग आता है. तो rule says you have to select the numbering in such a way that they give you lowest sum. So 4 plus 4 8, 8 plus 2 10, 10 plus 1 11, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9. So this is the lowest number. So numbering goes from here 1 1 2 3 4. Now on third carbon term, this branching is present. So this is called as 2 carbon term वाले को इथाइल बोलते हैं. 4 पर भी वही है. So 3 4. So 3 4 क्या आ जाएगा, डाई इथाइल. 3 4
डाइथाइल। अब क्या रह गया है, फर्स्ट और फर्स्ट पर एक ही लाइन है, एक ही लाइन का मतलब मिथाइल होता है। सो 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल। और रिंग में 6 कार्बन एटम है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। रिंग में 6 कार्बन एटम है, इसलिए नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। So your name becomes 3,4-diethyl 1,1-dimethyl cyclohexane. Clear? Yes, sir. Thank you. Okay. So we should move to the next part of the topics. So let us see with the aromatic compounds. You'll understand what the word aromatic compounds, I hope everybody. Yes, sir. What do you mean by aromatic compounds? The compounds which possess aroma. Aroma, बराबर है, that was called as aromatic compounds earlier. New definition. Someone else? हाँ, एरोमा वाला बोला आपने, ठीक है, और कोई कुछ? No. So aromatic compounds, the name is correctly derived from the word aroma. Earlier it was Conjugated planar chain हाँ, system. क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, अब वो चेन सिस्टम में क्या बोलना है आपको, रिंग सिस्टम बोलना है, चेन नहीं यूज करना है, वर्ड रिंग यूज करना है। वेरी गुड आंसर, करेक्ट है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर इन द रिंग सिस्टम। तो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है अल्टरनेट, कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है अल्टरनेट। तो इसमें अल्टरनेट चीज क्या है, दे हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। चला मराठी मध्ये एग्जांपल में बेंजीन आएगा, बेंजीन ही आएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन ही है, ठीक है। सो व्हाट, लेट अस सी द स्ट्रक्चर, व्हाट यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड जो पहले वाले स्टूडेंट ने बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड उसका नेम डिराइव हुआ है व्हाट, एरोमा से ही डिराइव हुआ है। एरोमा मतलब होता है फ्रेग्रेंस। तो पहले ऐसे माना गया था कि जिसमें भी फ्रेग्रेंस होता है वो सब एरोमेटिक होते हैं, बाद में लेटर इसको रॉन्ग प्रूव किया गया है, बट नाम वही रखा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीनिंग होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स with alternate double single double single double bond, with alternate double and single bonds, and they are planar, are called as aromatic compounds. तो इसमें ये alternate double and single bonds को हम क्या बोल सकते हैं, conjugated भी बोल सकते हैं। तो this is an aromatic compounds, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट वाला आपको यही है, और इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम बेंजीन। ये नाम सबको लगभग पता है, इसका दूसरा नाम भी है, वो शायद ही किसी को पता होगा। आई डोंट थिंक सो एनीबडी सिटिंग इन दिस रूम मस्ट बी नोइंग द अदर नेम ऑफ बेंजीन। सो द बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। द अदर नेम ऑफ बेंजीन इज फीन, PHENE, ठीक है। अब इसका एक्चुअली ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ज्यादा करके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही चलता है बेंजीन का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कम चलता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो दिखा देते हैं कैसे होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका। Then alternate double and single bonds. So double, double and double. Alternate double and single bonds. So हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो सबको एक एक बॉन्ड की जरूरत है। तो एक एक बॉन्ड में क्या आ जाएगा, H, एक एक बॉन्ड में क्या आ जाएगा, H। सो दिस बिकम्स अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। यू कैन सी 6 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, this is structural formula, and this is called as bond line formula of benzene, and other name of benzene is phene. So now let us see the some IUPAC nomenclature using benzene.
ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन, और फंक्शनल ग्रुप क्लोरो आया है साथ में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। Yeah, benzene ring और CH3, CH3 is having less carbon atom, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। क्लियर दिस मच? आगे चलते हैं। दिस स्ट्रक्चर NH2 एंड बेंजीन रिंग। अब NH2 फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइन का है और उसके पास सफिक्स है अमाइन, इट इज हैविंग अ सफिक्स अमाइन, सो नेम बिकम्स व्हाट? बेंजीन अमाइन। Benzene amine, E is replaced by the word amine, so name becomes what? Benzene amine. Clear? Now here let us see, now learning part, कुछ learn करना है। Benzene ring and CH3, benzene ring and CH3 is also called as toluene, तो ज्यादा करके ये नाम इस्तेमाल किया गया है। ये मिथाइल बेंजीन बॉन्ड कब चलता है? ज्यादा करके नाम टॉलीन ही चलता है, और टॉलीन नाम जो है वो कॉमन और IUPAC सिस्टम दोनों में चलता है, कॉमन एंड IUPAC सिस्टम दोनों में ये नाम चलता है। कौन सा नाम चलता है? टॉलीन। उसी तरह से बेंजीन रिंग और NH2 को बेंजीन अमाइन बोलते हैं, इसका प्रचलित नाम, फेमस नाम, पॉपुलर नेम इज एनिलीन। व्हाट इज एनिलीन? दिस एनिलीन इज एक्सेप्टेड इन कॉमन as well as IUPAC system. So chlorobenzene, methyl benzene, benzene amine. Methyl benzene is more pronounced as toluene in common and IUPAC system, both accepted. And this benzene amine is more pronounced as what? Aniline, and this is more popular in common and IUPAC system, both. Similarly, let us move to this part. Benzene ring and CHO. Benzene ring and CHO, benzene aldehyde. So name becomes what? Benzaldehyde. बेंजीन और अल्डिहाइड है ना, दोनों को कंबाइन करके वर्ड बना दिया गया है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। दिस इज एक्सेप्टेड इन कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम। हाँ, इफ यू हैव रेड द रूल्स में मैंने बताया था, पहले ये लिख देता हूं एक और स्ट्रक्चर, फिर रूल्स बताता हूं मैं। ये बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स OIC, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, इसलिए इसका नाम कैसा है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अभी if you have read the rules carefully, in that rules I had mentioned that when you having carbon atom along with the aromatic chain या cyclic chain या suffix changes, ये जो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है अगर ये एरोमेटिक रिंग के साथ में प्रेजेंट होता है तो इनका सफिक्स चेंज हो जाता है। तो CHO को हम क्या बोला था सफिक्स में? AL बोला था, तो यहां पर नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इफ यू हैव रेड इट, मैंने बताया उस किसमें आपके suffix और prefix functional group वाले में, if you must have read, I have mentioned that suffix for what? Ring structures is written that carbaldehyde for what? CHO group. Okay, and for COOH group the suffix uses carboxylic acids, पूरा नाम लिखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो नाम है बेंजाल्डिहाइड, दिस नेम इज एक्सेप्टेड इन कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम, एंड बेंजोइक एसिड कॉमन इन IUPAC, बट ये जो वाला है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, दिस इज प्रॉपर IUPAC, सिर्फ और सिर्फ IUPAC है, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रॉपर IUPAC नॉमेनक्लेचर है।
तो ऐसा क्यों किया गया, ये नाम दोनों में एक्सपेक्टेड है। जैसे सबको, जैसे ना पहले कुछ कंपाउंड बना गया था और वो कंपाउंड उसी नाम से फेमस हो गया, तो उसका नाम वही चलते गया कॉमन और आईयूपीएसी दोनों में। भले ही उसका बाद में सोच विचार करके अच्छे से हमने आईयूपीएसी नेम रखा, बट वो प्रचलित कम हुआ। सिंपल एग्जांपल है, हमारे जो महात्मा गांधी है उनको हम बापू के नाम से ज्यादा हिट है, वो बापू या महात्मा गांधी, क्या हम बहुत कम उसको प्रॉपर उसके नाम से जानते हैं या पुकारते हैं ना। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वापस बताता हूं कि जो महात्मा गांधी है इज मोर प्रोनाउंस एज महात्मा गांधी या फिर बापू, ये दो नाम से वो हिट है। बहुत कम लोग उनको पूरे नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका पूरा नाम है, बहुत से लोग को नाम भी पता नहीं है। तो ओरिजिनल नेम वही है, बट जो ज्यादा प्रचलित नेम है, ज्यादा फेमस नेम है, वही चलता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो गया, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इज मोर फेमस एज चाचा जी, ने चाचा ही बोलते हैं, या फिर नेहरू ज्यादा ना, नेहरू या चाचा जी, जवाहरलाल भूल गए, हम लोग नाम ज्यादा याद ही नहीं करते। तो सेम यहाँ पर ये जो बेंजीन और CHO है, इनका बेंजाल्डिहाइड नाम जो रखा गया था वो ज्यादा हिट हो गया, ज्यादा फेमस हो गया। सो वो कॉमन और आईयूपीएसी दोनों में एक्सपेक्टेड है, प्रॉपर आईयूपीएसी नेम है। तो उसी तरह से बेंजीन रिंग और NH2 का नाम एनिलीन जो है दैट इज एक्सेप्टेड इन कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नेम, so it is having proper IUPAC benzenamide. So I hope you are understanding what I'm trying to explain y'all. So we'll move further with some more structures of what aromatic rings. Okay, so start writing in your books and start solving. Come on, let us see. Now look at the structure first. This is called as ketone. Ketone का functional group है. Ketone का functional group है. तो कितने कार्बन एटम्स है? यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन एटम, बराबर है। तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों मिला? क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। भले ही ये चेन बड़ा है, बट इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग मोर प्रायोरिटी। सो 2 कार्बन एटम्स आर देयर। सो 2 कार्बन एटम्स मतलब इथेन, और सफिक्स आ जाएगा ONE, क्या इथेन, एंड सफिक्स आ जाएगा ONE, इथेनोन। Now benzene ring is in the substituent. Benzene ring becomes substituent. Benzene ring in the substituent form is called as phenyl. क्या बोलेंगे हम उसको? phenyl. कौन से कार्बन पर है? 1 पर। Again I repeat, benzene ring को substituent form में हम क्या बोलते हैं? phenyl बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-phenyl ethanol. But more pronounced इसका नाम है एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल नाम है। ऐसा नाम क्यों रखा गया है? CH3 जब भी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ में प्रेजेंट होता है, CH3 along with कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप, it is called as acid, ACET. CH3 with कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमेशा एसिड। बेंजीन का दूसरा नाम आपको बताया था मैंने, फीन। बेंजीन का दूसरा नाम फीन, और कीटोन का सफिक्स ONE, इससे नाम हो गया एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन कॉमन आईयूपीएसी दोनों में चलता है। चलो इसका नाम
बेंजीनॉल। बेंजीनॉल, वेरी गुड। बेंजीन और सफिक्स आ जाएगा OL, सो बेंजीनॉल। फिनॉल। यस, वेरी गुड। दिस आल्सो कॉल्ड एज फिनॉल। तो ये फिनॉल नाम जो है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड नेम, इट इज एक्सेप्टेड इन कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम। सो फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। ऐसा नाम क्यों रखा गया है? बिकॉज इट इज हैविंग अ फ्रेग्रेंस ऑफ कार्बोलिक एंड फंक्शनल ग्रुप OH, H plus ions are released, H plus ions are released, so it shows acidic nature and hence the name is given carbolic acid. इसका नाम कार्बोलिक एसिड है, फिनॉल है, या फिर बेंजीन भी है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं OH का नाम हाइड्रोक्सी एंड दिस इज बेंजीन, so it is also called as hydroxybenzene, but more famous name is phenol and carbolic acid. चलो वहां पर अभी ये Sir, Yes. if we write benzenol, then it is right. यस यस, तीनों नाम राइट है, बताया ना मैंने आपको। ये बेंजीनॉल नाम जो प्रॉपर IUPAC नेम है, बेंजीनॉल प्रॉपर IUPAC है। फिनॉल कॉमन और IUPAC दोनों में चलता है। फिनॉल नाम जो है, फिनॉल एंड कार्बोलिक एसिड, दे एक्सेप्ट कॉमन एज IUPAC नेम बोथ, बट बेंजीनॉल प्रॉपर IUPAC। चले ठीक है। अभी यहाँ पर हाँ, ये ईथर का ग्रुप है, देखो ROR, ईथर है ना। ईथर का पैटर्न कैसे है? ईथर्स का पैटर्न आपने देखा होगा, मैंने लिखा है अल्कोक्सी अल्केन। ईथर का पैटर्न लिखा है अल्कोक्सी अल्केन। तो अभी इसमें ये ग्रुप बड़ा है, ये ग्रुप छोटा है, तो ये छोटा है तो वो अल्कोक्सी में जाएगा। द स्मॉलर ग्रुप मूव्स इन द अल्कोक्सी। One carbon atom is called as meth. One carbon is called as meth. So meth oxy, meth oxy, meth oxy. And this is called as benzene. So name becomes methoxybenzene. क्योंकि ईथर का पैटर्न है अल्कोक्सी अल्केन, एंड अल्कोक्सी इज विच ग्रुप? लोअर अल्काइल ग्रुप, तो छोटा होता है, तो छोटा वाला ये है, इसलिए मिथॉक्सी, ये बेंजीन। इसको ग्रुप प्रोनाउंस्ड नेम इज एनिसोल। एनिसोल नाम ज्यादा चलता है, दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड नेम, दैट इज एक्सेप्टेड इन कॉमन एज वेल एज IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हमने आज काफी सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड देम। I'm going very slow. So now I give you some structures. You try to solve now. I'll clean the board. You try to solve. Okay, so now there are two functions present in this chain. One is aldehyde and one is alcohol. तो क्वेश्चन राइजेस कि नंबर 1 किसको देना है? तो नंबर 1 किसको देंगे? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, हाँ अल्डिहाइड, वेरी गुड। तो अल्डिहाइड को नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे देंगे। तो जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, कौन से पोजीशन पर है? 2, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी।
हो गया ये खत्म। अभी मैंने बताया था बेंजीन और CHO का नाम क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड। इससे नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सेम यहां पर अभी NH2 और CH3 है। NH2 मतलब अमाइन, CH3 मिथाइल, तो ज्यादा प्रायोरिटी अमाइन के पास है, इसलिए उसको नंबर 1 मिलेगा, नंबर 1। तो ये 2, ये 3, ये 4। तो मिथाइल इज हैविंग लो प्रायोरिटी, तो मिथाइल का प्रीफिक्स 4 पर मिथाइल। और मैंने क्या बताया था आपको, बेंजीन रिंग एंड NH2, बेंजीन रिंग एंड NH2 they is called as aniline, so name becomes what, 4-methyl aniline, 4-methyl aniline. Clear? So look at the third structure and say me क्या नाम आएगा. Can you try to give me the name of the third structure? Come on students. Two hydroxy benzenoic acid. Benzenoic. Yes, very good. 2-hydroxy benzoic acid. नहीं 2 नहीं आएगा, नंबरिंग आपने रॉन्ग बोला बेटा। नंबरिंग कैसे, देखो ये 1, ये 2 और ये 3 ना, 3 पर है, तो नेम आ जाएगा 3-hydroxy Benzenoic acid. benzoic acid. Clear? So everybody please note down in your notebook. Now there are the position and the aromatic ring. Before I move to the position, there are 2 substituents present in the benzene ring. When there are 2 substituents present in the benzene ring, they are called as di-substituted. कब बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। सब में देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, और जो 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है, तो उसको पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, symbolized by small o. If the substituents are present on first and second position, they are prefixed as ortho and symbolized by o. When the substituents are present on first and third position, that position is called as meta, small m. And if on first and fourth position, then para, then small p. This system is used in common system. मतलब अगर इसका कॉमन नेम लिखने बोला है, तो हम लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। मतलब बाकी सब सेम, सिर्फ 2 की जगह पर O लगा देंगे। O का मतलब होता है ऑर्थो का मतलब होता है substituents are present on first and second carbon. If substituents are present on first and third position, then that is called as meta position. First and fourth position, then they are called as para position. But this is used only for common system, not for IUPAC. तो अगर मैं को इसका नाम लिखना है, come on, who will speak the name of this compound, both IUPAC and commonly? One comma 1,3 dibromobenzene. 1,3 dibromobenzene, right? IUPAC name right, correct? 1,3 dibromobenzene. कॉमन नेम में क्या है, अभी कौन सा पोजीशन नहीं है, ऑर्थो, मेटा या पैरा? मेटा पोजीशन है, बराबर है। 1,3 मतलब मेटा, तो हम क्या लिखेंगे, एम, Meta dibromobenzene. ब्रोमोबेंजाइन। very good students, you are doing very nice, fabulous work you are doing. So I hope you will study this at home. Please practice this at home, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं जाऊंगा टॉपिक आइसोमेरिज्म की तरफ।
नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गो विद द टॉपिक आइसोमेरिज्म, सो प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक्स एवरीथिंग एट होम। सो अगर आप रिवाइज कर देते हो तो मैं एक वर्कशीट दूंगा आपको वर्कशीट करने के लिए, तो आपका काम आसान हो जाए। टाटा बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल, बाय Bye, sir. बाय। Yes, bye Bye, everyone. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye, Sir, sir. bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir. Bye bye everybody. Bye sir, Gatsuk sir. बाय। Bye, sir. Bye, Deep, Devanshi, Devyani, Mitansh, Prajwal.